In this class, we are going to study about cross-pollination. So in our previous class, we had studied about the types of pollination, that is the self-pollination, cross-pollination and the various types of self-pollination, and also the types of cross-pollination, that is through abiotic agency like water or wind, or through biotic agencies like insects, snails, bats, birds, and there are other categories like ants also. So in this class we are going to study about the theoretical portion of the cross pollination, that is what it is, how it occurs, what are the features and other such things. सो क्रॉस पॉलिनेशन में हमने ये सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर एक प्लांट के एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट पर गिरेगा, यानी कि उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा, बट देयर द जेनेटिक सिमिलैरिटी शुड नॉट बी देयर, यानी कि पहले प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में देयर शुड नॉट बी जेनेटिकली आइडेंटिकल feature, that is they should be genetically different, they could have different varieties or they could have different subspecies or there could be some, at least some genetic difference, only then we can call it cross pollination. Suppose a single plant releases some pollen grains and those pollen grains fall on the stigma of a plant who is genetically identical to the first plant. So in that case we are not going to say that cross pollination has taken place. What we are going to say that? We are going to say that self pollination such as geitonogamy has taken place. We had studied what is geitonogamy. So in the case of cross pollination, the most important feature is that the first plant should not be genetically identical to the second plant, or the plants in between which the pollination is occurring, they should be genetically different. तो यहां पर एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तो गया है, लेकिन वहां पर जेनेटिक डिफरेंस है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, तभी हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन का एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोगेमी. अब एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज एलोजोमी. So allozomy is a very confusing term. What happens in this case is allozomy will include this xenogamy and also it will include geitonogamy. So it cannot be clearly said that allogamy is cross pollination or self pollination. But the main condition here is that the majority of the scientists prefer allogamy and xenogamy simultaneously. यानी कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो हैं वो xenogamy को allogamy के साथ इक्वेट करके बात करते हैं. सो नॉर्मली xenogamy का मतलब होता है allogamy, लेकिन allogamy will also include geitonogamy. हमने पिछली अपनी क्लास में पढ़ा था कि गीटोनोगेमी क्या होता है. तो
तो यहां पर एलोगेमी जो टर्म है ये जीनोगेमी को भी इंक्लूड कर लेता है और गिटोनोगेमी को भी इंक्लूड कर लेता है, लेकिन नॉर्मली जीनोगेमी का मतलब होता है एलोगेमी। ठीक है, तो एलोगेमी और जीनोगेमी को जनरली इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। सो वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्रॉस पॉलिनेशन का पहला टाइप था थ्रू एबायोटिक और दूसरा टाइप था थ्रू बायोटिक। तो एबायोटिक में हमने दो टाइप पढ़े थे, एक वाटर के थ्रू और एक विंड के थ्रू। तो जो विंड के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड एज एनेमोफिली, और क्रॉस पॉलिनेशन का स्टार्ट वी आर गोना डू फ्रॉम एनेमोफिली। सो वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम विंड पॉलिनेशन और एनेमोफिली। Anemophily is normally known as pollination through wind or wind pollination. So it's not कि wind is getting pollinated. Wind is being used for pollination, or we can also say this as pollination through wind. So इस केस में हमने जानना है कि फ्लावर के फीचर्स क्या क्या होंगे, यानी कि फ्लावर में ऐसे ऐसे कौन से अडेप्टेशन होंगे जिसकी वजह से विंड पॉलिनेशन हो सके। So in this case we are going to study about structural modifications or structural adaptations of a flower for being pollinated by the wind, or whatever it could be structurally modified so that wind could pollinate that flower. So we are going to study about modifications of anemophilous flowers. तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है वहाँ पर ये है कि फ्लावर ब्राइटली कलर्ड नहीं होगा। नॉर्मली हम इमेजिन करते हैं कि जो फ्लावर होते हैं दे कुड बी ब्राइटली कलर्ड, जैसे कि रोज, लोटस, जैस्मिन, ऐसी चीज़ों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दीज आर वेरी ब्राइटली कलर्ड। लेकिन इन द केस ऑफ एनेमोफिली तो ये जो भी फ्लावर्स होंगे वो ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे। सो दीज विल बी नॉर्मली नॉट ब्राइटली कलर्ड। तो पहली फीचर जो हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़नी है वो ये है कि इस केस में फ्लावर काफ़ी छोटे होंगे, उनमें कोई ब्राइट कलरेशन ही नहीं होगा जो हम नॉर्मली किसी भी फ्लावर से एक्सपेक्ट करते हैं। एंड द थिंग इज इट विल बी इनकॉन्स्पिक्यूअस, यहाँ पे दूर से देखने पे पते ही नहीं चलते हैं कि क्या वहाँ पे फ्लावर थे या फिर फ्लावर हैं वहाँ पर। सो दीज आर वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस टाइप, जिसके कि प्रॉपरली विजिबल नहीं होते हैं फ्लावर। एंड नॉर्मली देन दे आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। तो 11th क्लास में आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे फ्लावर सिंगली अलग अलग नहीं है, जैसे कि रोज में होता है कि एक पेडिसल पे एक फ्लावर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड होते हैं एक ही इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, तो इससे पॉलिनेशन में हेल्प मिलता है। सिंगल पॉलिनेशन कुड पॉलिनेट द एंटायर फ्लावर। तो इन जनरल ये पहला फीचर है हमने।
अब फ्लावर के अदर फीचर्स पढ़ने हैं। तो नॉर्मली फ्लावर में हमें नेक्टर मिलता है और एक बहुत ही प्लेजेंट ओडर मिलता है जिससे कि सेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फ्लावर में ना वो बढ़िया सा स्मेल होगा, फ्रेग्रेंस होगा, और ना ही फ्लावर में नेक्टर जैसा कुछ सा होगा। सो फ्लावर विल बी नेक्टरलेस एंड ओडरलेस। तो यहाँ पे फ्लावर में ना तो फ्रेग्रेंस होगा ना ही नेक्टर होगा। सो नेक्टर इज अ स्वीट सब्सटेंस जो कि जनरली फ्लावर की नीचे साइड में पाया जाता है, और बहुत सारे बर्ड्स या इंसेक्ट्स इसी नेक्टर को सक करने के लिए आते हैं। तो फ्लावर में यहाँ पे वो जो स्वीटी सब्सटेंस होता है, बहुत स्वीट होता है दिस नेक्टर, ये नेक्टर यहाँ पर नहीं पाया जाता है। नाउ वी कम टू द अदर मॉडिफिकेशन। अगर हम यहाँ पर एंथर की बात करें या फिर हम यहाँ पे स्टेमन्स की बात कर सकते हैं, तो स्टेमन्स आर एक्सर्टेड, और स्टेमन्स एक्सर्टेड होते हैं तो एंथर भी बाहर की ओर निकले होते हैं। सो वी कुड से दैट स्टेमन्स आर एक्सर्टेड। और स्टेमन्स के ऊपर में क्या होता है? एंथर, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था कि स्टेमन में नीचे में फिलामेंट होता है और ऊपर में होता है एंथर। तो वो जो एंथर होता है, दैट एंथर इज वर्सेटाइल। So the normally in stamen the filament will be below and the above anther will be versatile. तो यहां पर एक्सर्टेड और वर्सेटाइल दो वर्ड है जो हमें समझना है। तो एक्सर्टेड का मतलब होता है बाहर की ओर निकला हुआ, समथिंग दैट प्रोट्रूड्स, यानी कि जो भी मेन स्ट्रक्चर होगा दैट इज द फ्लावर। इन दिस केस इट इज अ फ्लावर विच इज द मेन स्ट्रक्चर, एंड आउटसाइड दिस फ्लावर दिस स्टेमन वुड बी एक्सपोज्ड और एक्सर्टेड और प्रोट्रूडेड। तो लाइकवाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्सेटिलिटी। So this versatile nature of anther is something like this. तो यहां पर वर्सेटाइल कहने का मतलब कि जो नीचे का फिलामेंट है वो एंथर के बीच में से जुड़ा हुआ है। तो अगर एंथर के बीच में जाके जुड़ा रहेगा तो विंड के वजह से एंथर जो है ना वो हवा में स्विंग कर सकता है। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय वर्सेटाइल, यानी कि वर्सेटाइल का मतलब होता है कि जो हमारा फिलामेंट है वो एंथर पे बीच में जाके अटैच्ड है, उसके बेस से नहीं, या जो बेसल साइड होता है या डॉर्सल साइड होता है जिसे हम कहते हैं डॉर्सी फिक्स्ड या फिर बेसी फिक्स्ड, वो नहीं है, यहां पर बीच में जुड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज अगर बीच में जुड़ा हुआ है तो वो इजीली दोनों तरफ से स्विंग कर सकता है। लाइकवाइज वर्सेटाइल का मतलब यही है कि नीचे का जो फिलामेंट है वो एंथर के बीच में से जुड़ा हुआ है, दैट इज filament is attached to the middle portion of anther. तो ये तो बात हो गई स्टेमेन की। तो प्लांट में स्टेमेन ही तो सिर्फ होते नहीं है, प्लांट में जो फ्लावर होता है उसमें कार्पेल या पिस्टल भी होते हैं। सो नाउ विल स्टडी अबाउट कार्पेल और पिस्टल।
सो जो स्टेमेन था वो तो एक्सर्टेड था, लाइकवाइज जो पिस्टिल होता है वो भी एक्सर्टेड होता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से जो स्टेमेन्स थे वो फ्लावर से बाहर निकले हुए थे, उसी तरह यहाँ भी जो पिस्टल्स यानी कि जो फीमेल पार्ट होता है वो भी बाहर की ओर निकला होता है। तो उसका फायदा क्या होता है कि जो स्टाइल होता है, स्टाइल लंबे होने की वजह से स्टिग्मा और बाहर की ओर निकला होता है, जिसकी वजह से जो स्टिग्मा है वो हवा में काफी सारे जो पॉलन ग्रेन उड़ रहे होते हैं उन पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि स्टिग्मा फेदरी होता है, जो फेदरी जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें इजीली जो पॉलन ग्रेन होते हैं जो कि हवा में होते हैं, दैट इज द एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स, दीज कुड बी ट्रैप्ड इनटू द फेदरी स्टिग्मा। तो बाहर निकले हो होने का क्या फायदा हुआ कि जो हवा में पॉलन ग्रेन्स है उसे स्टिग्मा ने कैप्चर कर लिया, जिससे कि पॉलिनेशन हो जाता है। सो नाउ वी हैव सीन कि स्टेमन कैसा होता है और यहाँ पर पिस्टल कैसा होता है। तो ये दो फ्लावर के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। नाउ इसके अलावा दो और पार्ट हमने पढ़ा था, कैलिक्स और कोरोला, दैट इज सेपल और पेटल। तो यहां पर कोई इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ही नहीं है तो पेटल को होने की जरूरत क्या है? तो पेटल ही तो ब्राइटली कलर्ड होता है नॉर्मली, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर ये जो एक्सेसरी पार्ट है दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स, तो पेटल के होल को हमने कहा था कोरोला और सेपल के होल को हमने कहा था कैलिक्स। तो यहाँ पर कैलिक्स कोरोला या तो नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो वो बहुत ही रिड्यूस्ड होंगे, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे होंगे, जो कि जनरली विजिबल भी नहीं होगा। सो दिस इज अबाउट दिस वन। तो ये तो हमने देख लिया कि जो फ्लावर के मेन पार्ट थे यानी कि स्टेमेन और कार्पेल वो कैसे हैं, और फ्लावर के एक्सेसरी पार्ट वो कैसे हैं। नाउ वी विल सी कि जो पॉलिन ग्रेन यहाँ बनते हैं वो पॉलिन ग्रेन कैसे होते हैं। तो यहां पर पॉलिन ग्रेन का कुछ फीचर है। अगर कोई सब्सटेंस ड्राई होगा तभी तो वो काफी थोड़ा हल्का होगा, पानी होने की वजह से वो वेट होके भारी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन काफी सूखे हुए यानी कि बहुत ही हल्के होते हैं। यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन होता है ये बहुत ही हल्का होता है, एंड देन ये नॉन स्टिकी होता है, यानी कि पॉलिन ग्रेन एकदम पाउडरी नॉन स्टिकी टाइप का होता है। यहाँ पे किसी भी चीज में जनरली स्टिक नहीं करता है, एंड देन इट इज वेरी स्मूथ इन आउटलाइन, इट डज नॉट हैव वेरी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। जो हमने पढ़ा था एक्साइन के केस में, वी हैड सीन दैट पॉलिन ग्रेन आउटर लेयर दैट इज द एक्साइन. Exine could have tubercles, exine could have spines, and various other designs on the exine could be present.
but in this case, in the case of anemophilous flowers, those spines and tubercles will not be present. What will happen? The pollen grain would be smoother and that is unwettable also, यानी कि ये जो है पानी से जल्दी भीगता नहीं है। तो अगर वो पानी से भीगेगा नहीं तो उसमें मॉइस्चर जल्दी जाएगा नहीं, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा मॉइस्चर से भी और वो हल्का रहेगा। इसके अलावा पॉलन ग्रेन के अंदर विंग जैसे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं या पॉलन ग्रेन के अंदर एयर सैक्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से पॉलन ग्रेन बहुत दूर तक हवा में उड़ता हुआ जा सकता है। तो एयर सैक होने की वजह से पॉलन ग्रेन काफी हल्का हो जाएगा और उसमें विंग जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एग्जांपल इन द केस ऑफ पाइन, तो पाइन में 1300 किलोमीटर तक जो पॉलन ग्रेन है वो उड़ के जा सकता है, उसमें विंग लाइक पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो उसमें 1300 किलोमीटर तक पॉलन ग्रेन उड़ के जा सकते हैं। किसी किसी प्लांट में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द इन द एंथर, दैट इज द पॉलन सैक, तो वो जो एंथर होता है वो बर्स्ट कर जाता है, उसे हम कहते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म। तो गन पाउडर मैकेनिज्म क्या है? सिंपली कि जो एंथर है वो बर्स्ट करेगा, जब एंथर फूटेगा तो पॉलन ग्रेन वुड बी थ्रोन टू लार्जर डिस्टेंसेस, यानी कि द पॉलन ग्रेन विल बी डिस्पर्स्ड टू अ ग्रेटर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द नॉर्मल रप्चरिंग ऑफ द एंथर। इन सब कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एंथर नॉर्मली धीरे धीरे रप्चर करता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एंथर बर्स्ट करेगा तो ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन काफी दूर तक जाके गिरेंगे, यानी कि उनका डिस्पर्शन में हेल्प होगा। ये तो हमने देख लिया है। नाउ थोड़ा सा मेज प्लांट के बारे में हमें जानना है। तो मेज में क्या दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉब जो कि फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, और जो मेल फ्लावर होता है जिसे हम कहते हैं टैसल। तो टैसल जो होता है वो मेज प्लांट के टिप पर होता है और काफी वो एक्सपोज्ड होता है। लाइकवाइज मेज प्लांट में जो नीचे साइड में फूल होते हैं जिसे हम नॉर्मली कॉब कहते हैं, जो कि फीमेल पार्ट होता है, दैट इज द फीमेल फ्लावर और द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। तो इन द केस ऑफ मेज, सिंगल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड ईयर, but the whole structure is called as cob. So we are going to deal here with cob.
तो ये पॉइंट हमने ऊपर में देखा था, बट वी हैड नॉट सीन दैट कि वो किस में नॉर्मली होता है। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मेज। तो मेज में आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ईटन द कॉर्न, तो वहां पर जो बाहर में पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दोज आर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो वो क्या करता है, दैट मोस्ट प्रोबेबली दैट इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है, काफी फेदरी है, स्टिकी भी है। तो स्टिग्मा अगर स्टिकी है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि पॉलिन ग्रेन उसमें आके स्टिक कर सकता है। तो पॉलिन ग्रेन अगर उसमें आके स्टिक कर जाएगा तो पॉलिनेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ मेज, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज द कॉप। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस मतलब वो जो पूरा फूल का स्ट्रक्चर है। सिंगल फ्लावर ऑफ मेज, यू मस्ट हैव स्टडीड इन 11th क्लास, उसे हम कहते हैं ईयर। लेकिन यहाँ पर मेल फ्लावर की जब हम बात करें तो मेल फ्लावर इज कॉल्ड एज टैसल। तो यहां पर मेल फ्लावर को कहते हैं टैसल और फीमेल फ्लावर को कहते हैं ईयर, और पूरा फीमेल फ्लावर का जो सेट होता है उसे कहते हैं कॉब। सो ये दोनों होते हैं मेल और फीमेल पार्ट, और दोनों का जो फीचर्स होते हैं यू मस्ट हैव सीन इन द केस ऑफ अ मेज प्लांट। नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द एग्जांपल्स इन व्हिच विंड पॉलिनेशन और एनेमोफिली टेक्स प्लेस। तो एक तो एग्जांपल हमने अभी जस्ट देखा कि मेज के अंदर होता है, दैट इज इन द केस ऑफ मेज ये विंड पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर प्लांट्स आल्सो। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि कोकोनट, डेट पाम, ग्रासेस, कैनबिस। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जांपल्स होते हैं। तो ग्रास फैमिली को हम नॉर्मली कहते हैं ग्रामिने। तो ग्रामिने के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो विंड पॉलिनेशन के थ्रू ही होता है। एंड ग्रासेस में जो फ्लावर्स होते हैं वो नॉर्मली बहुत ही ज्यादा शोई या काफी ज्यादा वो ब्राइट नहीं होते। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो ग्रासेस का है। सो वी हैव सीन की जो विंड पॉलिनेशन है वो क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम होता है जो कि विंड पॉलिनेशन की वजह से अराइज कर सकता है। नाउ वी आर गोना सी कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है। जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था और पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़ा था, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो पॉलिन ग्रेन होते हैं दे कुड कॉज एलर्जी, जिन्हें हम नॉर्मली हे फीवर कहते हैं, या ब्रोंकाइटिस करा सकता है, या फिर एस्थमा करा सकता है। सो वी हैड ऑलरेडी सीन कि पॉलिन ग्रेन क्या प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन जिस कैटेगरी के फ्लावर्स ने सबसे ज्यादा एलर्जी किया है दैट इज द एनेमोफिलस। एंड व्हाई, लेट्स सी।
तो यहाँ पर विंड पॉलिनेशन के केस में प्लांट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जो विंड पॉलिनेशन होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि जो विंड है फ्लावर के अकॉर्डिंग तो ब्लो नहीं करेगा। सो इन जनरल फ्लावर बहुत ज्यादा पॉलिन ग्रेन्स क्रिएट करता है, जिससे कि हो सकता है कि कुछ पॉलिन ग्रेन्स पहुंच जाए जो उसका फीमेल फ्लावर है वहां तक। तो उस वजह से विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स क्रिएट करता है। तो उनमें से बहुत कम ही पॉलिन ग्रेन्स पहुंच पाते हैं ना फीमेल फ्लावर तक, बाकी तो एयर में रहते हैं काफी टाइम तक। इसी की वजह से जो सबसे ज्यादा पॉलिन एलर्जी होता है वो एनेमोफिलस प्लांट्स की वजह से ही होता है। तो एलर्जी कौन कौन से एलर्जी करते हैं ये हमने तो पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो जो विंड में जो पॉलन बच गए ना, यानी कि जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच गए वो तो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, और बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचा ना, तो बाकी कहाँ रहे? विंड पॉलन जो कि ज्यादातर टाइम तक विंड में रह गए। सो वही पॉलन ग्रेन सबसे ज्यादा एलर्जी करते हैं। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें जो ये जो विंड पॉलिनेशन है, इट इज अ वेरी वेरी वेस्टफुल प्रोसेस। So it is a very very wasteful process. So now we have completed our wind pollination. So now we are going to study about water pollination, and that is also called as hydro